Hello, friend. This is your hydraulic expert Pankaj Srivastava, and today I am going to talk about the second type of pump, hydraulic pump, which are used in hydraulic system, that is vane pump. So the vane pumps are basically two types. One is balanced vane pump, another one is unbalanced vane pump. Okay, so I'm going to explain in this video, and I hope this will be useful. And this also will first explain in English and then in Hindi. Okay. So the vane pumps, basically, if you see the construction of the vane pump, it has got a rotor which is eccentric to the body, okay? And there's an outer body, and the rotor holds the vanes, which are on the periphery of it. It holds the vanes, and when you rotate the rotor, you drive the rotor, because of the centrifugal force, these vanes come out and they come in contact with the outer body or the cam surface. Okay, as you can see, when you are rotating on the left side of the pump, there is basically vanes are opening, vanes are coming out, okay, and creating increasing volume. That's the way the suction happens. And the other side, on the right side, what is happening? It is basically closing. The vanes are closing, going inside, and they are creating decreasing volume, and they are pushing the oil out. So that is the delivery side. Okay. So basically there are two types. One is the unbalanced vane type, and the other one is the balanced type vane type. Okay. So you can see what I explained you earlier is the unbalanced vane type, where the pressure is working on one side of the shaft. So there is a side loading of the bearing. In the other side of the pump, other type of pump, you have an oval ring, and in the center there is a rotor which has vanes. Okay. So because of the ovality, it creates two sections which has increasing volume and decreasing volume, and both are working opposite to each other. So there is no side loading on the shaft, and because of this, it has got a better life of the pump, right? So if you see the working of the pump, see, so here what is happening on this side, on the left side, the vanes are opening and they are creating, suction, and the other side, it is going, the vanes are closing and creating it. The arrows are wrong. This is the wrong, the arrow should be just opposite. This side, it should be sucking. The red side is the suction side, and the blue side is the delivery side. So just ignore that. This is the thing. Okay. Thank you. Now in Hindi, so basically, मैं आज दूसरे टाइप के पंप के हाइड्रोलिक पंप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ. वो होता है वेन पंप. तो वेन पंप में एक रोटर होता है जो सेंटर से आउट होता है, सेंटर में नहीं होता है, और उसी के पेरिफेरी पे उसकी चारों तरफ आपकी वेन्स लगी होती हैं. जब आप रोटर को घुमाते हो स्पीड में, तो बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वेन्स बाहर आती हैं और वो आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती हैं. तो अगर आप इस साइड में, लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में वेन्स बाहर आ रही हैं और एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, उससे सक्शन पैदा होता है. दूसरी साइड पे वेन्स रोटर के अंदर की तरफ जा रही हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रिसिटी, और उसके चलते वो अंदर जा रही हैं, जिससे डिक्रीजिंग वॉल्यूम हो रहा है और पंप की डिलीवरी हो रही है. ठीक है. तो बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होता है अनबैलेंस वेन टाइप. अनबैलेंस टाइप जो आपको हमने पहले एक्सप्लेन किया, उसमें बेसिकली रोटर इसेंट्रिक होता है, तो जो आपका प्रेशर साइड होता है वो शाफ्ट की साइड में होता है. सो देयर इज अ साइड लोडिंग ऑन द बेयरिंग, एंड इससे इसकी पंप की लाइफ कम होती है. जो अभी आजकल हम पंप यूज करते हैं, उसमें रोटर सेंटर में होता है और एक ओवल रिंग होती है जो उसके चारों तरफ होती है. सो बिकॉज ऑफ द ओवल रिंग, आपके दो इनलेट चैम्बर क्रिएट हो जाते हैं, दो आउटलेट चैम्बर, दो प्रेशर चैम्बर क्रिएट हो जाते हैं. तो बिकॉज प्रेशर चैम्बर्स अपोजिट एक दूसरे के काम करते हैं, सो देयर इज नो साइड लोडिंग, एंड इसके चलते आपका जो पंप है उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी मिलती है. एंड इफ यू सी द वर्किंग ऑफ द पंप, यहाँ पे जब ये घूम रहा है पंप, तो दिस साइड वेन्स ओपन हो रही हैं, तो सक्शन पैदा हो रहा है, तो दूसरी साइड वेन्स क्लोज हो रही हैं और ये डिलीवरी हो रही है. जो एरो यहाँ पे दिखाए वो उल्टे दिख गए हैं गलती से, तो उसको आप उल्टा समझिए कि जो रेड साइड है वो सक्शन साइड है और द ब्लू साइड इज डिलीवरी साइड. ओके. वेन पंप्स की अगर हम रिपेयरिंग की बात करें, तो वेन पंप कैन नॉट बी रिपेयर्ड बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, रोटर के वेन्स खराब हो जाते हैं और इसके आउटर सरफेस पे भी मार्किंग रह जाती है. तो नॉर्मली अगर हमें चेंज करना होता है, तो बेसिकली पूरी कार्ट्रिज को चेंज करते हैं, जिसमें ये ओवल रिंग, रोटर सब कुछ साथ में आ जाता है. तो अगर इसकी कॉस्टिंग देखें, तो नॉर्मली जो कार्ट्रिज की कॉस्ट होती है वो पंप की लगभग 80% कॉस्ट होती है. तो उसी केस में जब रिपेयर करते हैं, जैसे मल्टी सेक्शन पंप है, उसका कोई एक सेक्शन खराब हो गया है, तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं कि भाई उसका वो सेक्शन चेंज कर दिया, उसकी कार्ट्रिज चेंज कर दी. अदरवाइज
हमें अगर एक सिंगल सेक्शन पंप है और उसकी कार्ट्रिज खराब हो गई है तो बेटर टू गो फॉर ए न्यू पंप, बिकॉज विद न्यू पंप यू विल गेट न्यू बेयरिंग्स, न्यू शाफ्ट, न्यू सील्स, न्यू बॉडी. Okay, so there's a general rule: if the cost of repair is more than 40% of the new pump, you should not go for repair of the pump. You should go for a new pump. तो इसलिए वेन पंप में अगर मल्टी सेक्शन पंप है डेफिनेटली गो फॉर रिपेयर. एक सेक्शन अगर खराब हो गया और अगर सारे सेक्शन खराब हो गए तो पंप को फेंक दीजिए और दूसरा नया पंप ले लीजिए. ओके, थैंक यू. होप यू लाइक दिस पंप, दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.